Welcome you all in today's class. Today we will discuss about the formatting of Excel, right? So you can see the Excel sheet in front of you. So please watch very careful. Today we will discuss all the formatting effects which we can apply on the text, right? So here I am starting. First of all, we have to know about the changing cell alignment. How we can change the data in a cell according to the alignment. Here I am writing a name. Suppose I am writing name Century, right? I am going to enlarge this cell so that you can observe the change. Look, now you can observe that the formatting or alignment is from left side and it is by default. Means whenever you type any text, it will start from the left side of the cell. This is our by default formatting, means alignment. Every text always aligned from the left side and every number is always aligned from the right side, right? Look now. Suppose I am writing 101 and wait 101. Look, you can observe now that every number is by default aligned from right side and every text is from left side. Means कि ये left side से शुरू होगा और ये right side से शुरू होगा. उसके बाद we can align them according to us. लेकिन एक बार जैसे आपने start कर दिया उस वक्त ये by default ही align होगा. Text मैं repeat कर देता हूँ. Text from left side and number from right side. Okay. Next is चेंजिंग सेल अलाइनमेंट. हम एक अलाइनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं. देखो यहां पर मैंने सिलेक्ट किया और ये ऊपर यहां पर होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आप यहां से चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लेफ्ट साइड इज बाय डिफॉल्ट. आफ्टर दैट you can select center option, and if you want to start it from right side you can choose right option, right? And you can observe the change. Same way our text is by default from right side, but you can change according to you. You can change alignment of it. Suppose you want to change left side, then center, and then right. तो जहां भी चाहो आप इसको ऐड कर सकते हो. ये बात आपने ध्यान रखनी है. अभी मैंने दोनों को ही सेंटर लाइन किया है. जस्ट वेट. Okay, students. Sorry for the interruption. Now, we not only align our cell left, right, or center,
or we can also align our cell from top, center and bottom like this. If you want to change, look students, look, अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा जो सेल का है वो लेफ्ट साइड टॉप में हो जाए, तो आप इस बटन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा मैग्नीफायर टूल से इसको जूम करके दिखा देता हूं आपको। प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। लुक, वी हैव दीज ऑप्शंस and you can observe the name. Look, top align, middle align, bottom align. ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर इसके साथ साथ करके दिखाता हूं आपको, आप प्लीज नोट करें। अभी हमारे पास है टॉप अलाइन, ये है मिडल अलाइन। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, देखो आप देख सकते हो कि है तो ये लेफ्ट साइड में, क्योंकि नीचे लेफ्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या हो गया है, ये अलाइनमेंट इसकी होगी है सेंटर में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बॉटम अलाइन, ये देखो ये रहेगा लेफ्टी लेकिन आ जाएगा नीचे। सेम इसी तरह से आप इन दो ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं कर देता हूं इसको सेंटर, सेंटर में मैंने कर दिया टॉप, सेंटर में मैंने कर दिया मिडल, सेंटर में मैंने कर दिया बॉटम। सेम वे राइट साइड, उसी तरह टॉप, मिडल और सेंटर, ठीक है। और अगर हम दोनों को सेंटर कर देंगे देन द डाटा विल लुक वेरी ब्यूटीफुल एज यू कैन ऑब्जर्व। तो ये थे अपने अलाइनमेंट, जो आप इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अब इसके अंदर हम लोग एक नई ऑप्शन देखेंगे, दैट इज ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन? लुक स्टूडेंट, sometime we have data with us which we can't show in our single screen. Let me off it. Okay, ये देखिए यहां पर मान लीजिए मैंने इसको, ये पूरा मैंने लिखा है इसको कंप्यूटर, and I am changing this mathematics. I am changing it with mathematics. Now you can observe beta that the heading is cutting from both sides. But if we enlarge the column, then unnecessarily space will occupy by the computer, right? क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ही कम है, जैसे 2 डिजिट में है, लेकिन हेडिंग के कारण हमें इस कॉलम को थोड़ा ज्यादा वाइड करना पड़ रहा है। तो इन चीजों से बचने के लिए, अपने स्पेस को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन कैसे चेंज होगी, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर डाटा। मान लीजिए मुझे यहां से डाटा चेंज करना है और मैं यहां पर आ गया, और अब इसके बाद ओरिएंटेशन चेंज करनी है। जो डाटा आपने सिलेक्ट किया है उसमें सिलेक्ट हुए में ही राइट क्लिक कर दो कहीं भी, ठीक है, और उसमें ऑप्शन आएगी फॉर्मेट सेल। जैसे फॉर्मेट सेल आप ओपन करोगे तो यू विल फाइंड अनदर डायलॉग बॉक्स दैट विल अपीयर इन सम सेकंड्स। यस, हियर इट इज। अब इसके अंदर आपने ध्यान रखना है अलाइनमेंट पे। ये आ गई अलाइनमेंट, और यहां पर टेक्स्ट अलाइनमेंट तो हमारा हो गया, लेकिन अब हम यहाँ पे इसको हम करेंगे ओरिएंटेशन। टेक्स्ट अलाइनमेंट ये वही चीजें हैं जो अभी हमने ऊपर की हैं, यहाँ पर ये यहाँ से भी आ सकती हैं और डायरेक्टली हमारे पास टैब में भी ये हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे ओरिएंटेशन की। तो अलाइनमेंट टैब के अंदर ओरिएंटेशन यू कैन चेंज। दिस टाइम 0 डिग्री ओरिएंटेशन इज देयर, बट यू कैन चेंज। सपोज आई एम entering only 15, you can directly enter. You can change. When I press OK button, then you can observe the orientation of the text, but it will not serve our purpose because
इट इज क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन नाउ दैट अब क्लास ये है लेकिन नजर इस पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको फिर दोबारा से हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल अगेन, देन ओरिएंटेशन, और सपोज मैंने इसको 90 डिग्री कर दिया। आकाश सपोज मैंने इसको 90 डिग्री कर दिया, देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंज ऑफ टेक्स्ट। अब ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो इसको जैसे मैं ओके करता हूं, लुक नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। अब क्या हुआ कि जो मैथमेटिक्स इस तरह से स्पेस हॉरिजॉन्टली स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, लेकिन अब ये वर्टिकली स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको रिड्यूस कर सकते हो साइज को। ये देखो, अब जो बहुत लंबी शीट हमारी हो गई थी, अब आप इसको बहुत ही थोड़े एरिया के अंदर इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये सारी एक्सरसाइज जो हुई, ये जो सारी मेहनत हम लोगों ने की, वो सिर्फ इसलिए की कि हमें ये बात पता लगे कि किस एंगल पर हम अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा याद रखने की चीजें हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस क्लास के बाद तो आपको आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट जो मैंने कराना था आपको ओरिएंटेशन वाला, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट ओरिएंटेशन, तो ये मेरी ओर से ओके है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क इफ देयर एनी प्रॉब्लम, यू प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन, इट इज टू यू स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ आ गया है तो वो भी बताइए, नहीं समझ आया तो वो ही बताइए। आर यू सर एक बार और समझा दो। हाँ बेटा बोलो मयंक, दोबारा बोलो क्या है। सर एक बार और समझा। मानिक ना, इसमें कौन सा पोर्शन नहीं समझ आया बेटा। बाकी सब बच्चों को समझ आ गया। जैसे आपने सिलेक्ट के बाद जो भी करा था वो बता दो एक बार। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। मैं पहले इसको वैसा ही कर देता हूं जैसा ये था। ये 0 डिग्री पे था, इस तरह से था, और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो हेडिंग बड़ी होती है वो उसके कारण हमें इस सेल को, इस कॉलम को हमें वाइड करना पड़ता है, जिससे ये फालतू का स्पेस जाता है ना। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको वर्टिकल फॉर्म में कर दिया बजाय के हॉरिजॉन्टल फॉर्म के। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिलेक्ट द डाटा। ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, अब आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द डाटा, देन फ्रॉम द सिलेक्शन पोर्शन, इसके बाहर नहीं, सिलेक्शन पोर्शन के अंदर ही कहीं पर भी जाके प्लीज क्लिक राइट क्लिक, प्लीज राइट क्लिक द माउस एंड चूज फॉर्मेट सेल। क्योंकि जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास शॉर्टकट मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, दोनों इसके नाम है, शॉर्टकट मेन्यू एंड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाके ये बाय डिफॉल्ट वैसे ये आएगा आपके सामने नंबर, लेकिन आपने नंबर टैब पे नहीं जाना है, आपने अलाइनमेंट टैब पे जाना है, क्योंकि नंबर टैब की फॉर्मेटिंग वी ऑलरेडी डन, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आप, मैंने कर दिया इसको 90, यानी बिल्कुल ही मैंने स्लांट कर दिया इसको, राइट। और यहाँ पर भी अगर आप चाहो टेक्स्ट अलाइनमेंट दोबारा कर सकते हो, सेंटर, और ये अगर वर्टिकल जो लाइन आएगी यहाँ से, तो ये बॉटम से चले या ये भी सेंटर से चले, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कर दिया यहाँ पे इसको ओके। जैसे ओके किया तो ये सारा डाटा जो आपने सिलेक्ट किया था ये सारा का सारा वर्टिकल फॉर्म में आ गया, यानी 90 डिग्री के ऊपर आ गया। फिर इसको
पूरे सेल को सिलेक्ट करके ऊपर से डबल क्लिक कर दो, अकॉर्डिंग टू द साइज इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली। आपको एक एक करने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूं। यहां से ऊपर से सिलेक्ट करना है कॉलम हेडिंग से, और किस लास्ट में जाके इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जब ये डबल साइडेड एरो, टू हेडेड एरो आ जाए, डबल क्लिक, ये ऑटोमेटिकली जिसकी जितनी विड्थ है उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा। जैसे परसेंटेज की डाटा के अकॉर्डिंग ज्यादा विड्थ है और जो क्लास है उसकी सबसे कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने चेंज कर दिया है। यू कैन ऑब्जर्व। Is it clear now? Student, is it clear now? Yes, sir. Okay. Now we are moving on next command about the formatting. That was text alignment. And now I am telling to you how we can add borders. Before it, I want to tell about the formatting from the same place. Suppose मैंने यहाँ पे लिख दिया once there was a king. Suppose I write this line. अब एक सेल से ज्यादा का हो गया है तो सेल के ऊपर जाके डबल क्लिक कर देंगे तो ये सेल वाइड हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये वाइड हो। We want to fix the size. We want to fix the size of our cell, right? तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सेम वही जाओगे आप, सेल के ऊपर जाके राइट क्लिक करोगे, सेम वही फॉर्मेट सेल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अब आपने यहाँ पे आना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट कंट्रोल, ये ऑप्शंस हैं। ऊपर है टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे था ओरिएंटेशन, और अब आ गया टेक्स्ट कंट्रोल। टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर क्या है, सबसे पहले ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, रैप करना। आप लोग जब स्कूल आते हैं या कहीं पे बाहर जाते हैं तो जब भी आप खाना साथ लेके जाते हो बेटा, तो आपकी जो मदर है वो खाने को फॉइल पेपर के अंदर रैप करके देती हैं। रैप का मतलब हो गया लपेटना, यानी एक लिमिट पे जाके उसको मोड़ देना वापस, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाए, यानी एक सेल में लगातार ना चले, हमें सेल की विड्थ ना बढ़ानी पड़े, बल्कि जो सेल है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप एडजस्ट कर ले अपने आप को, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको क्लिक किया रैप टेक्स्ट को, और जैसे मैं इसका साइज कम करूंगा, यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। जैसे मैंने इसका साइज कम किया तो ये अपने आप रैप होता आ रहा है, ये देखो ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह कर दिया तो ये जहां तक 2 लाइन्स में आ सकता है ये आ जाएगा। इस तरह से जो भी चीज आप आगे लिखते जाओगे, जैसे मैंने यही सेम ऑप्शन यहां पर भी लगा दी और यहां पर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि यू कैन, जैसे ये लास्ट पे पहुंचेगा तो आप देखना क्या होगा, यू कैन ऑल्सो एडजस्ट, ये देखो नीचे आ गया ना, एडजस्ट द ओरिएंटेशन by simply dragging the text arrow towards up and down. सपोज ये लाइन मैंने लिख दी। अब यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। अब जितनी विड्थ हमने दी थी इसकी, जितना वाइड हमने इस कॉलम को किया है, उसके अकॉर्डिंग नीचे अपने आप एडजस्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रैप कर दिया है। यानी यहाँ के आगे ये जाएगा नहीं, नीचे रैप होता रहेगा। अगर इसको साइज को बढ़ा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली देखो चेंज होता है, ये देखो अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब अगर ये ऑप्शन क्लियर ना हुई हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा। रैपिंग द टेक्स्ट, इस कमांड का नाम है रैपिंग द टेक्स्ट। एनीबडी? अगर आपको क्लियर है तो No, यू कैन क्लियर।
अगर आपको क्लियर है तो आप क्लियर करके मुझे बताइए कि यस इट इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो जो जो आपकी क्वेरीज हैं वो पूछिए, बट प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। योर पार्टिसिपेशन इज मस्ट। बोलिए। Sir, it is clear. ओके, व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? Sir, all clear. Clear. Okay. Now second option is, what is, we have second option in it. Look, right click करते हैं वापस, ये देखो ये रैप है। अब की बार रैप मैंने हटा दिया, मैंने कर दिया श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है छोटा हो जाना, जैसे कपड़े को आप धोते हैं तो वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है ना, सिकुड़ने को बोलते हैं श्रिंक। तो हम यहाँ पर श्रिंक टू फिट, कि ऐसा श्रिंक हो जाए कि सेल के अंदर फिट हो जाए, हमने ओके कर दिया। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक बड़ी अजीब सी चीज हुई है कि जो टेक्स्ट हमारे पास था, मैं इसको जूम करके दिखाने वाला हूँ आपको, इसमें आपको एक बहुत ही एक बढ़िया फीलिंग आएगी इसकी। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो यू कैन ऑल्सो एडजस्ट, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, देखो टेक्स्ट में धीरे धीरे दिखा रहा हूं आपको। इसने इतना श्रिंक कर दिया कि जितनी इसकी विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग ये फिट हो गया, इसलिए इसका नाम है श्रिंक टू फिट। अब अगर मैं क्या करूं इसको, अब अगर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा साइज इसका। ये देखो, अभी देखना, ये देखो, नाउ इट इज इनफ बिग टू रीड। ये देखो, और जितना मैं साइज बढ़ाता जाऊंगा इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन का नाम था श्रिंक टू फिट। कहां से आएगा? सेम वही, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल एंड देन राइट क्लिक ऑन इट एंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू select format cells. After that, in the text control you can use shrink to fit. इसमें एक ही चीज यूज आप कर हो पाएगी आपसे, एक ही ऑप्शन ले सकते हो, या तो रैप द टेक्स्ट या फिर श्रिंक द टेक्स्ट। अगर आपने रैप कर दिया है तो श्रिंक नहीं होगा, अगर आपने श्रिंक कर दिया है तो फिर रैप नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रैप का मतलब क्या है कि वो टेक्स्ट आपका सेल की विड्थ से ज्यादा लंबा है तो वो उसको नीचे ले आए, रैप कर दे। और श्रिंक का मतलब क्या है कि वो एक ही लाइन बना देगा लेकिन सेल की साइज में ले आएगा, उसकी विड्थ साइज के अकॉर्डिंग ये इसको श्रिंक करके फिट कर देगा एक ही लाइन के अंदर। तो ये दो ऑप्शन थी हमारे पास। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? मर्ज सेल। मर्ज सेल, मर्ज सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए दो सेल हमारे पास हैं, फॉर्मेट सेल में हम गए, मर्ज सेल के ऊपर कर दिया, ये देखो ये एक ही सेल बन गया। सेल के और एल अलग अलग हैं लेकिन यहां पर के और एल एक ही बन गए हैं, ऊपर सिलेक्टेड हैं लेकिन ये मर्ज हो गए, दोनों मर्ज हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं डाटा सारा का सारा। तो जो फर्स्ट सेल का डाटा होता है वो ओवरराइट हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन थी। तो आज हमने जो ऑप्शन किए हैं वो 3 ऑप्शन कर ली बेटा, 4 ऑप्शन कर ली बल्कि। एक तो हमने किया ओरिएंटेशन, सेकेंडली हमने किया रैप टेक्स्ट, थर्ड हमने किया श्रिंक टू फिट, और फोर्थ अभी हमने किया मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, इसका ऑपोजिट होता है स्प्लिट, स्प्लिटिंग सेल, ठीक है, उसको बोलते हैं तोड़ना, यानी अलग अलग कर देना, एक सेल को कई सेल में बांट देना, दैट इज स्प्लिटिंग, ठीक है। वो हमने उसको हमने स्प्लिट कर देते हैं, लेकिन यहां पर जब दो सेल को हम एक साथ लेके चलते हैं उसको हम बोलते हैं मर्ज, मर्ज द सेल। तो ये 4 ऑप्शंस हुई हैं। अगर इन 4 ऑप्शंस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है 4 में से किसी में भी तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। ओवर टू यू स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क। आई एम वेटिंग। Sir, all clear. Okay. Now our next
ऑप्शन इज दैट इज चार्ट्स। और चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी। तीनों के अंदर, तीनों एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं एंड वी कैन यूज चार्ट्स इन इट। तो सबसे पहले चार्ट का यूज क्या है, व्हाई वी यूज चार्ट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। In 1 and 2 minutes, we will cover this discussion. Students, charts are the pictorial presentation of our data. Pictorial, यानी फोटो के रूप में। चार्ट्स को जब हम शो करते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर इसी चार्ट्स को हम लोग ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसको हम ग्राफ नहीं बोलते, हम इसको चार्ट बोलते हैं। तो चार्ट्स जब भी आप यूज करते हो, तो चार्ट इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ आवर डाटा इन विच वी कैन एक्सप्रेस और वी कैन शो every detail of our data in a presentable manner. With the help of chart, we can show our data effectively and more appealing, and most probably it becomes very easy to understand for everyone. ठीक है, तो ये दो तीन विशेषताएं इसमें हैं, दो तीन फीचर्स हैं जिसके कारण हम चार्ट यूज करते हैं। अब चार्ट को यूज कैसे किया जा सकता है, देखो बेटा, आप जब मैथ्स के अंदर ग्राफ के सम करते हैं तो आपको पता है कि उससे पहले यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। एक्स एक्सिस के लिए क्या वैल्यूज होंगी, वाई एक्सिस के लिए क्या वैल्यू होंगी, है ना। तो उसी तरह से यहां पर भी आपको चार्ट को बनाने से पहले आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, उस डाटा की जरूरत पड़ेगी जिस बेस के ऊपर आप वो चार्ट बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि चार्ट्स कहां से स्टार्ट होते हैं और उसके लिए टेबल कहां से आएगी। लुक नाउ, सपोज हमने इसके अंदर 3 सेल में यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, 2 सेल मैंने ये लिए और 1 सेल मैंने ये ले लिया, यानी मैंने लिया है अभी सीरियल नंबर, नेम, बल्कि सीरियल नंबर भी रहने देते हैं, सिर्फ नेम एंड परसेंटेज। On the base of 2 columns, we are going to create a chart. हमने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब के अंदर हम लोग जाएंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट एंड यू कैन ऑब्जर्व द चार्ट सेक्शन डिफरेंटली। डिफरेंट चार्ट्स हैं यहाँ पे, सेपरेट इसका एक ग्रुप बना हुआ है और इसके अंदर कुछ टाइप्स भी आपको दी हुई है, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर्ड एंड अदर, और भी बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में 1 by 1 वी विल डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन जो बाय डिफॉल्ट चार्ट होता है, दैट इज कॉलम चार्ट, राइट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यू विल फाइंड सो मेनी ऑप्शंस ऑफ इट। हैं सारे के सारे चार्ट्स ही और कॉलम चार्ट हैं सभी, बट द क्रिएशन इज डिफरेंट, टाइप्स इज डिफरेंट। मान लीजिए सबसे पहले मैंने यही ले लिया बाय डिफॉल्ट, मैंने ओके किया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज, ये चार्ट बन के आ गया है। थोड़ा मैं छोटा कर दूं इसको ताकि आपको नजर आए। ये देखिए यहाँ पर ए के मार्क्स कितने हैं, ये यहाँ पे चार्ट बन गया, बी के, सी के, डी के और जे तक। और इसके बारे में जो डिटेल है कि हम कैसे क्या यूज करेंगे वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। that will be on Monday. Monday, I hope Monday may be holiday, but whenever we will meet again, then we will discuss about the chart. Okay, तो ये मैं फिर एक बार दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द डाटा एंड देन go on insert tab and choose your favorite chart। ठीक है, तो मैंने इसमें ओके किया और ये देखो यहाँ पे आ गया। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी।
Any question, beta? Otherwise, I am going to take the screenshot of your attendance. In between, you can ask any question to me. No, sir. No, sir. No, sir. And one most important information to all of you, that I will give you some assignment in the form of project work. So be ready for that, and the project will be in Excel. ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेल के अंदर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा और आपको उसको बनाना है.